So hello folks, welcome back to this another video, and in this video we are going to solve today's LeetCode daily challenge June 22. So let's try to open it. Oh, it is already solved. Okay. Count number of nice subarrays. Given an array of integer nums and an integer k. A continuous subarray is called nice if there are k odd numbers on it. Return the number of nice subarray. So the problem statement is very clear, very crystal clear. We have to just find the total number of subarrays in which the count of the odd elements is equals to k. Okay, so let's try to discuss the solution of this problem. बोर्ड पे चलते हैं. So okay, so here uh, so here so in this given example, our k is equals to 3 and the array looks like 1 1 2 1 1, and we have to find out the number of subarrays having k odd integers. So it is clearly we can see that there are only two such subarrays where the count of odd elements is equals to k. Okay, so the first subarray is this and the second subarray is this. Okay, so our objective is to find this total number of subarrays. So what we will do? So let's discuss first brute force solution. Brute force. What will be the brute force? Like what will be the brute force solution? Okay, I think this raw board is not working. Let me refresh it once. Just a minute. Okay, now it is working. Okay, so guys, what will be the brute force solution of this problem? So the brute force solution will be generate. Guys, this board is not working. Why? Maybe the internet issue. Let me refresh it once. Can we write? Right? So yeah, guys, now it is working. So what will be the brute force solution of this? We will generate all possible subarrays, and we will check whether this particular subarray having elements such that the total number of the odd element will be equal to k or not. If it is equal to k, we will increase our answer. So guys, we are not going to write the code for this because everyone knows that how to generate all possible. We will keep two for loops, and we will, for every start, we will the first loop is representing the every start, and the second for every end. We will just check and we will return the answer. Here the time complexity will be order of n square. So this is not going to pass the all test cases because the time limit is high.
we have to think of better than this solution. So we will try to solve this problem in O of n time complexity. And how we will solve this problem in O of n time complexity? Guys, here we will try to model this question in little bit different way, so that we can apply some techniques to solve this problem, because we cannot directly apply some like I am thinking of applying sliding window here. So we cannot directly apply sliding window to find the k subarrays, because we will not able to cover the all possible subarrays if we just need to count the we just need to check for the k. So we will try to model this problem little bit in a different way. What we will do, guys, like क्या कर सकते हो, देखो हमारा जो सब एरे है, हमको क्या बताना है कि नंबर ऑफ सब एरेज number of subarrays having k odd elements. ओके, इस चीज को हम थोड़ा सा हम रिप्रेजेंट करते हैं अलग डिफरेंट स्टाइल में. तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये सेम होगा कि अगर हम फाइंड आउट कर ले नंबर ऑफ subarrays having less than equal to k minus number of subarrays less than k. कर सकते हैं. तो guys, we are already aware that this particular problem and this particular problem we can solve using sliding window two pointers approach. कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, we can solve easily. But guys, इस तरीके से तो हमें दो बार स्लाइडिंग विंडो लगाना पड़ेगा कि हम एक बार लेस देन इक्वल टू के के लिए हम स्लाइडिंग विंडो लगा रहे हैं और एक लेस देन के लिए लगा रहे हैं. क्या हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं? क्या इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा ये होगा इसको हम ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ सब एरेज लेस देन इक्वल टू के ऑड एलिमेंट्स माइनस नंबर ऑफ सब एरेज less than equal to k minus 1 element, less than equal to k minus 1 element. Guys, सिंपल. अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो कि हमें ये सिर्फ दे दे, सिर्फ हमारा नंबर ऑफ सब एरेज लेस देन इक्वल टू के दे दे. फिर हम उसी फंक्शन में हम पास कर देंगे k माइनस 1 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारा जो टोटल नंबर ऑफ सब एरेज हैविंग k एलिमेंट्स होगा, हैविंग k ऑड एलिमेंट हो, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा. अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास वी हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम मेनी टाइम्स. और ये हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व होगा हमारा स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व हो जाएगा. स्लाइडिंग विंडो से कैसे सॉल्व होगा देख लो. क्या करेंगे हम, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला ये 1 1 2 1 1 and k equals to 3. So what we will do? We will create two pointers. Left start with 0, right start with 0 and odd element count 0. Okay? फिर इनिशियली हमारा विंडो लेंथ 1 है, L0 R0 विंडो लेंथ 1 है, आंसर हमारा 0 है. ठीक है. सो वी हैव 1 ऑड एलिमेंट. सो हमारा जो ऑड एलिमेंट हो जाएगा 1 हो जाएगा, विंडो साइज भी 1, ऑड एलिमेंट भी 1, क्योंकि 1 एक ऑड एलिमेंट है और हमारा आंसर में भी 1 ऐड हो जाएगा.
तो बेसिकली हमारे आंसर में एवरी टाइम क्या ऐड होगा, अभी हमें पता चलेगा क्या हो जाएगा। नाउ हमारा हम लेफ्ट को आगे बढ़ाते हैं, राइट को आगे बढ़ाते हैं। नाउ L 0 ही रहेगा, R हमारा 1 पे चला गया, विंडो लेंथ क्या हुआ 2 हो गया, और ऑड एलिमेंट 2 हो गया। तो क्या होगा, हम कितना और अपने आंसर में ऐड करेंगे। देखो अब हमारा विंडो लेंथ ये हो गया था, तो हम इस विंडो लेंथ को ऐड कर देंगे +2। क्यों 2 ऐड किए, ओके ये भी देख लो। जब ये था, जब हमारा विंडो लेंथ 1 था, तो हमने एक ऑलरेडी ऐड कर लिया था आंसर में, ठीक है। हम एक ऑलरेडी आंसर में ऐड कर लिए थे। जब हमारा विंडो लेंथ 2 हो गया, तो हम 2 क्यों ऐड किए, क्योंकि देखो हम अब इससे कितने पॉसिबल सब एरेज बने हैं, ये 2 हमारे पास है, तो एक 1 और एक 1 और एक 1 और एक 1 तो एक कंट्रीब्यूशन तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था। इसलिए हम एवरी टाइम, अब देखो जैसे जब हमारा विंडो, और आगे देखते हैं, अभी हमारा क्या है, L0 है, R2 है, विंडो लेंथ हमारा 3 हो जाएगा, और ऑड एलिमेंट अभी भी 2 ही है, क्योंकि इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ऑड एलिमेंट अभी भी देखो हमारा विंडो लेंथ यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो गया, और हम आंसर में हम अपना +3 ऐड कर दिए। और ऐसा क्यों किया, देखो जब हमारे पास सिर्फ 1 विंडो लेंथ था, तो हमारे पास एक ही सब एरे था। जब 1 आ गया, तो हमने 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि एक तो खुद सब एरे है, और एक अपने पिछले जितने भी एलिमेंट है उसके साथ वो एंड करके बनाएगा, ठीक है। इसलिए हम 2 जोड़ दिए। अब ये 1 1 2 हो गया, तब क्या किए, जब 1 1 2 हो गया, तो ये देखो एक तो वो खुद है, और उसके पहले जितने भी एलिमेंट है हमारा लेफ्ट जहां तक भी है, वो भी पार्ट होगा हमारे सब एरे का। मतलब ये एक अकेले होगा, एक इसके साथ होगा, और एक इसके साथ होगा। इसलिए विंडो लेंथ ही हम जोड़ रहे हैं इसमें हमारे आंसर में। तो अब इस तरीके से हमारा स्लाइडिंग विंडो चलेगा। अब देखो इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये चीज तो समझ में आ गई कि विंडो लेंथ क्यों ऐड कर रहे हैं। अब देखो, अब हमारा कहाँ चला गया, L चला गया 0 पे ही है, हमारा R3 हो गया, और ये यहाँ भी चला गया, और विंडो लेंथ हमारा कितना हो गया, विंडो लेंथ हमारा हो गया आपका 4, एंड ऑड वैल्यूज हो गई 3। हम क्या करेंगे, आंसर में 1 था, 2 था, +3 था, +4 ऐड कर देंगे। अब देखो, अब हमारा L, अभी इस विंडो पे आते हैं, अभी भी हमारा L <= 3 है। अब हम L0 पे ही है, R4 पे है, विंडो लेंथ 5 हो गई है, और ऑड 4 हो गया है। बट इस केस में हमारा जो ऑड की वैल्यू है वो > k है, मतलब हमको अपना लेफ्ट को श्रिंक करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट को श्रिंक करेंगे, फिर हम लेफ्ट को श्रिंक करके यहाँ पे ले आएंगे। लेफ्ट हमारा 1 हो गया, इसमें श्रिंकिंग किए हैं, तो अब L1 हो गया है, R4 हो गया है, एंड विंडो लेंथ हमारी 4 हो गई है, और ऑड एलिमेंट्स 3 हो गए हैं। ये रेंज में है, तो इसका विंडो साइड 4, ये भी हम जोड़ देंगे। तो टोटल 4 + 4 + 3 + 2 4 4 8 3 11 to 13 14 सब एरेज हैं, जिसमें हमारा जो ऑड एलिमेंट है <= k है। तो गाइस हमें बस इसी चीज को कोड करना है, और फाइनली हम बस वही जो मैंने इधर पहले बोला था वही कर देंगे, और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा गाइस। सो लेट्स ट्राई टू कोड इट। कोड करते वक्त और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो इनिशियली हमें क्या करना होगा, हमें एक लेफ्ट पॉइंटर 0, एक राइट पॉइंटर
इधर नहीं करना होगा कि हमें एक फंक्शन बनाना होगा जो कि हमें देगा इंट सॉल्व फंक्शन का नाम दे दो। यहाँ एक पैरामीटर हमारा वेक्टर इंट एंड नम्स जाएगा और एक आपका एज इंट के जाएगा ही जाएगा। अब देखो अब क्या करना है, इंट लेफ्ट 0 पे रहेगा हमारा, इंट राइट 0 पे ही रहेगा, इंट आंसर इनिशियली 0 है। फिर क्या करेंगे हम, वाइल RIGHT लाइट लेस देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज। जब तक मेरा राइट एरे की लेंथ से कम है तब तक क्या करेंगे, और एक और हमें ट्रैक करना पड़ेगा इंट ऑड, कितने ऑड अब तक मिले। हम क्या करेंगे, इफ नम्स डॉट राइट, अगर हमारा जो नम्स राइट ऑड है तो हम ऑड को प्लस प्लस करेंगे। फिर हम जो श्रिंकिंग वाला केस है उसको देखेंगे। अगर वाइल जो हमारा ऑड है ग्रेटर देन के है, हमको अपना विंडो मेंटेन करना है कि हमारे उस जो भी विंडो है उसमें जो हमारे ऑड नंबर ऑफ ऑड एलिमेंट्स है वो लेस देन इक्वल टू के ही रहने चाहिए। तो हमें वो विंडो मेंटेन करने के लिए जैसे ही हमारे ऑड की जो काउंट है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के होगा तो हम अपना लेफ्ट को श्रिंक करेंगे, और एक श्रिंक करते वक्त ये भी देखेंगे कि जो हमारे नम्स लेफ्ट था वो ऑड था कि नहीं, क्योंकि अगर वो ऑड रहेगा तो हमें अपने ऑड की कंट्रीब्यूशन को माइनस करना रहेगा, साथ साथ ही हमको अपने लेफ्ट को प्लस प्लस करना रहेगा। और हमारे आंसर में हमको प्लस करना होगा क्या, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, विंडो साइज हमें ऐड करनी होगी और हमें राइट को प्लस प्लस करना होगा। ये विंडो साइज क्यों ऐड करनी है समझ में तो आ गया होगा, बता दिया। रिटर्न आंसर, अब ये कोड क्या कर रहा है, ये हमें लेस देन इक्वल टू के लिए हमें आंसर करके दे रहा है। तो हमने समझा अभी कि हमको इक्वल टू के चाहिए तो हमको क्या करना होगा, इंट आंसर इक्वल्स टू व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल दिस फंक्शन विथ नम्स एंड less than equal to k, and we will subtract solve nums less than equal to k minus 1, and we will return this answer, and we will try to run it. Let's try to run it, and guys it is giving correct answer. Let's try to submit it. So guys, it is accepted and we have successfully solved this problem too. And this is a very nice idea when we have to find exactly some count of subarrays or some subarrays kind of things where you have to find exactly k, some exactly k depending upon the problem. So you can solve that kind of problem in this way, where I have written only one function and we have successfully solved this problem. Let's discuss the time complexity of this particular solution. So the time complexity is very simple, order of n, because we are only traversing the array, so we are applying sliding window, so this is order of n. And if we talk about the space complexity, it will be order of 1, because we are not taking any extra space, right? So the code and the problem link I will add in the description section. And thank you for watching this video. And if you have any query, then write it in comment section and I will try to solve it. And तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के वीडियो में कल के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। थैंक यू गाइस, बाय बाय।